welcome to Health Horizons, the show where we explore inspiring stories of healthcare leaders who are shaping the future of medicine and wellness. I'm Poonam Burde, your host, and today we're diving into the journey of Ernst Pharmacia, one of India's fastest growing pharmaceutical companies. From offering a vast range of products to maintaining strict quality standards, Ernst Pharmacia has built a reputation of trust amongst healthcare professionals and patients alike. So over the next 30 minutes, we'll uncover their story, their mission, and their vision for future. Joining me today is Ernst Pharmacia's CEO and founder, Nikhil Agarwal. Thank you so much for joining us here. Good evening. So let's get started. Welcome to the show. And I want to ask you the very first thing of how this all started. Where did it begin? कहाँ से शुरुआत हुई? कितने साल लगे to become one of the fastest, one of the bigger names to be considered with? And आगे क्या for Ernst Pharmacia? What's your vision like? See, our journey started in 2011 and it didn't really started with finished formulations, what we are into now. It actually started with API business, that is active pharmaceutical ingredient. So we started our journey with the imports of API, and gradually we realized that it is the right time. In 2014, we realized that it is the right time to get into finished formulations. So that's where we ventured this industry, and so in a decade, there's a long way that we have come. There's lots more to do. When you say there is a long way to go, what is it that you're hoping for in the future? What is it in the near future maybe? What is it that you're hoping to do? See, when 11 years back we started this business, we were not really sure that we'll be able, what we are doing right now was never envisioned. So this is what we try to say, that in future also, what we can never actually plan pharmaceutical. We initially started with antibiotics and gastro range of products. So with the trust of doctors and recognition around the country, we realized that it is time to now get into gynecology, cardiology, and diabetics. So that's how we started, and that's how we are growing. So it's an ongoing process. That's what we say. But and you mentioned these different kind of ventures that you have, different kind of sectors that you're venturing in. About 1,800 products, from what I hear, Yes. that you currently have. Yes. So how do you then balance between specializing and broad basing as far as different sectors go, but also ensuring that they're the best in that particular sector? See, each and every segment is important. So earlier, all these general medicines had a very big share. Now these specialized medicines are also, like I said, because of the lifestyle, has become a part of routine medication. So also there are new generation molecules that are coming up. Your body becomes immune to one molecule if it is used for a specific time. And in longer term, newer molecules take new place and older molecules go obsolete. So this is the newer generation development also keeps on happening. Newer molecules also keep on happening. So this is how pharma increases. The portfolio also has increased in this way only. So different segments, and in each segment, there are different generations of molecules that we keep on developing and launching. So that's how the portfolio keeps on increasing, and it will increase more with the passage of time. तो जैसे आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड लेमन टर्म्स के लिए जिनको फार्मा इंडस्ट्री की लैंग्वेज की जार्गन की इतनी समझ ना हो, जी. तो जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा कि अलग अलग स्ट्रेन्स थी, उन 3 सालों में बहुत सारी ऐसी स्ट्रेन्स थी जो बदले, जैसे हमारी बॉडी उस पर जैसे बॉडी पे इम्पैक्ट हुआ वो बदला. तो व्हेन यू से कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी मेडिसिन चेंज हो रही हैं, इज दैट व्हाट यू मीन कि जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है बेस्ड ऑन how the world changes, how our lifestyle changes, based on that ये सारे changes करने की ज़रूरत पड़ती है? Is that something you work on? जी, इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में बताना है तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक प्रिवेंशन और एक क्योर. इंडिया में हमने हमेशा क्योर पे ध्यान दिया है, प्रिवेंशन पे नहीं. हमारा प्रिवेंशन का जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम रहा है हमेशा से. लेकिन कोविड के बाद से जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं या इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना, हम लोग अब मार्केट इज़ नाउ फ्लडेड विद प्रिवेंटिव मेडिकेशंस. तो अब ये 2 पार्ट्स में पहले तो डिवाइड होती है मेडिकेशन. तो प्रिवेंशन एक नया सेगमेंट है जो मार्केट में आया है, उसके अंदर इम्प्रूवाइजेशन हो रहा है, और जो लाइफस्टाइल से जुड़ी मेडिसिन्स हैं उसमें प्रिवेंशन और क्योर दोनों आते हैं. क्योर इसलिए क्योंकि अगर हम एक मेडिसिन को पिछले 10 सालों से खा रहे हैं
या एक मॉलिक्यूल है जो हमारी जनरेशन में यूज़ हो रहा है, तो वो मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है और उसके बाद हमें एक न्यूअर जनरेशन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ऐसे ही आगे मूव ऑन होता रहता है और बहुत बार अलग अलग स्टेट्स में भी हमारा एक पीएच बैलेंस होता है बॉडी का। तो सेम रेमेडी के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से भी कई बार मॉलिक्यूल अलग होता है। तो आप देखें कि अगर हम सिर्फ गैस्ट्रो की बात करें, एसिडिटी जिसे बोलते हैं हम, उसके प्रोडक्ट्स की बात करें, तो सिर्फ उसको ट्रीट करने के लिए इंडिया में 40 से 50 मॉलिक्यूल हैं। इंडिया में नहीं, मतलब दुनिया में भी 40-50 मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग जनरेशन्स होती हैं। सो ऐसे ही हेल्थ केयर का जो आप देख रहे हैं, फार्मा का शेयर ऐसे नहीं बढ़ रहा है। और हालांकि बोलते हैं कि फार्मा कैसा चल रहा है, बोलते हैं अच्छा चल रहा है। तो ये एक हम प्राउडली नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर फार्मा अच्छा कर रहा है तो दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं। दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं मतलब लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये ट्रूथ है, जो सच्चाई है उससे भी नहीं हम हट सकते हैं। विद टाइम लाइफस्टाइल जैसे जैसे लोगों का ख़राब होगा, मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट वैसी वैसी बढ़ेगी। लेकिन जो लोग कॉन्शियस भी बहुत हो गए हैं हेल्थ को लेकर, उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो जब आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रिवेंशन और क्योर दोनों सेगमेंट्स की बात करें तो जी। इट्स अ वाइड वैरायटी एंड वाइड रेंज ऑफ जी, प्रोडक्ट्स जो आप जी, भी केटर करते हैं, और उसमें इतने जल्दी जल्दी अगर बदलाव होते हैं, यू नीड मोर रिसर्च, यू नीड मोर इनोवेशन एंड देन इवेंचुअली कि प्रोडक्ट आए। जी, इस पूरे उसमें जब टाइम इज ऑफ द एसेंस, जी। उसमें आप क्वालिटी पे कैसे ध्यान देते हैं? हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे जब रिसर्च की जाती है, तो हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी दोनों पे ध्यान देते हैं। रिसर्च जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक लेंदी प्रोसीजर है। तो जब उसकी R&D की जा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। तो डेफिनेटली वो गैप को हम फिल इन कितना भी करने की कोशिश करेंगे, वो गैप हमेशा रहेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और रिसर्च इज़ द ओनली थिंग, R&D अकेली एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो गैप विद टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बहुत सी फार्मा कंपनीज़ हैं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे काम होता है, तो वो गैप कहीं ना कहीं फिल करने की कोशिश हर एक फार्मा कंपनी की है कि एट द अर्लीस्ट कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी डिजीज़ या कोई भी एक मार्केट में या लोगों के बीच में कोई भी एक बीमारी आती है, कोई डिजीज़ आती है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द ढूंढा जाए। पर वो गैप एक हमेशा रहेगा। बट क्वालिटी की अगर बात करें तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो WHO के होते हैं या जो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जो GMP होता है, उसके तहत टू इंश्योर कि आपकी क्वालिटी बनी रहे, एट द सेम टाइम आप ये गैप छोटा कर सके जितना आप कर सको, ये कैसे कर पाएंगे? और हाउ डू यू टैकल दैट? इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली काम कर रही है प्योरिटी और क्वालिटी पे मेडिसिन्स की। पिछले 3 से 4 सालों के अंदर दवाइयों को बनाने के लिए जो मेजर्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो इतने कड़े और स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि कोई भी रूल आज ले डाउन होगा तो नेचुरली उसकी लाइन में आने के लिए एक फार्मा कंपनी को 1 से 2 साल लगते हैं। और जब तक आप एक सिस्टम को यूज टू होते हो तो एक नया सिस्टम आ जाता है। तो हमें इनको भी कंप्लाई करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कमी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जब बनाया जाता है हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि इसके अगर इफ़ेक्ट्स ये हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अब सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने लाइक आई सेड कि जो मेजर्स लिए हैं उसमें रिवाइज शेड्यूल M एक आ गया है। पहले WHO था, तो प्लांट्स कुछ नॉन WHO भी थे जो रन कर रहे थे, बट इन लास्ट 1 ईयर इतना उन्होंने प्लांट्स की एक्रीडेशंस की अगर हम बात करें तो रिवाइज शेड्यूल M अप्लाई कर दिया है, विच इज़ स्ट्रिक्टर देन WHO। तो और ये काइंड ऑफ मैंडेटरी है अब हर एक प्लांट के लिए। तो ये मेजर्स हैं जो लिए हैं। तो हेल्थ केयर
विद टाइम बहुत इम्प्रूव हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि अब नए शेड्यूल्स और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास आ रहे हैं कि अब आप इनको फॉलो करें. बट अफोर्डेबल की जब बात करते हैं, ये जनरल मेंटालिटी होती है कि जो चीज़ शायद सस्ती हो वो शायद उतनी ज़्यादा टिकाऊ या इफेक्टिव या क्वालिटी वाइज अच्छी ना हो. तो टू मेंटेन दैट बैलेंस आपको लगता है वो भी एक चैलेंज है? बहुत बार हमने इस चीज़ पे डिस्कशंस करी हैं. पास्ट 6-7 ईयर्स में तो कॉस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट बना है कि मेडिसिन की एक बनने की कॉस्ट ये है, लेकिन ये पेशेंट तक कितने में जाती हैं. आप देखें कि मेडिसिन में सबसे पहले एक इन्वेंशन होती है, उसके बाद उसकी रिसर्च होती है. फाइनली जब प्रोडक्ट्स की रिसर्च के बाद इतना पैसा खर्चने के बाद अगर वो कमर्शियल करने के लिए रेडी है, उसके बाद उसकी अवेयरनेस आती है. डॉक्टर्स को जब पता चलता है कि हाँ इस तरीके का कोई नया मॉलिक्यूल आया है, तो उसकी जो अवेयरनेस है उसकी कॉस्ट फार्मा कंपनी कहाँ से रिकवर करती है? वो नेचुरली मार्केट से ही रिकवर होगी. तो आफ्टर 4-5 years when you realize that you have recovered the cost, that is where when affordability comes. और तभी हमें अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करनी चाहिए. So as far as Ernst Pharmacia goes, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमने बात की, इनोवेशन, टेक इनोवेशन की भी मैं बात करना चाहूँगी. वो आप कैसे देखते हैं एज फार एज योर ऑर्गेनाइजेशन गोज? कैसे आप इम्प्लीमेंट इधर कर चुके हैं या करना चाहेंगे, समथिंग दैट्स इन द पाइपलाइन दैट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट? ये एक मार्केटिंग मॉडल है जो ग्रेजुअली स्विच हो रहा है. पहले 1-on-1 मार्केटिंग होती थी, जिसे हम टेली मार्केटिंग और मार्केटिंग बाय विजिटिंग डॉक्टर्स और बहुत सी इस देखिए वो आज भी एक एसेंस है फार्मास्यूटिकल का, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. लेकिन और बिजनेसेस की तरह फार्मा में भी जो टेक्नोलॉजी है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये डेफिनेटली टेक ओवर कर रहा है. जो मॉलिक्यूल्स हैं, विद टाइम इतने सारे नए मॉलिक्यूल्स और इतने चेंजेस जो मेडिसिन्स में आते हैं. बहुत बार प्रोडक्ट्स की MRPs होती हैं जो DPCO में प्राइस कंट्रोल में आ जाती हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखें कि पूरे साल में अगर हम वर्किंग डेज कैलकुलेट करें, तो अगर हम संडेज़ निकाल दें और पब्लिक हॉलीडेज़ निकाल दें तो 350 दिन होते हैं जो वर्किंग डेज़ होते हैं. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो 350 दिन में आप 350 इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर सकते हैं. तो अगर आप डिजिटल मीडिया की हेल्प नहीं लेते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते. आप पर्सनली इस इन्फॉर्मेशन को डॉक्टर्स तक पहुंचाना या आपके पार्टनर्स तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है. तो डिजिटल मीडिया जैसे इतना तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है वर्ल्ड और सारी चीज़ें, सारी इंडस्ट्रीज़, तो डिजिटल मीडिया तो उसके लिए मतलब उस पर डिपेंडेंसी है ही. और आगे आते हुए टाइम के अब पिछले 3 साल पहले हमारी जो डिपेंडेबिलिटी थी टेक्नोलॉजी पे वो कंपैरेटिवली कम थी. अब ईयर बाय ईयर वो बढ़ती जा रही है और आई थिंक इसमें कुछ हार्म भी नहीं है. टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एडवांस होगी, समय के साथ हमको भी बढ़ना चाहिए. जी बिल्कुल. ऐसा कुछ आपके मन में है, आपका विजन हो या आपका मैं कहूँ ड्रीम प्रोजेक्ट हो, ऐसा कुछ है जो आप शायद आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, होपफुली 5 साल बाद ऐसा कुछ करना चाहें? हमारी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स सिर्फ और सिर्फ अच्छी दवाइयाँ बनाने की हैं और जब सही समय आए उसको अफोर्डेबल बनाने की है, ताकि डिजिटल मार्केटिंग से हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों तक मेडिसिन्स शॉर्टर टाइम में और सही टाइम में पहुंचा सकें और सारी की सारी मेडिसिन्स पहुंचा सकें. सिर्फ जनरल मॉलिक्यूल्स नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी हर एक कॉर्नर में होनी चाहिए. यही हमारा मोटिव है. कोई और मार्केट्स आप डाइवर्सिफाई करना चाहें, जो मार्केट्स आपको लग रहा है कि अभी आप टैप नहीं कर पाए, जो मार्केट्स दैट यू मे बी लुकिंग एट? We want to cater our country first, and with the existing setup we have been successfully able to do this. But yes, approximately 6 countries now we are exporting to. With the expanding infrastructure we will try to cater more countries, but for us it's India first. COVID was a very difficult time. It gave us very important insight into how we really need certain healthcare professionals, certain industries, certain entrepreneurs to work as hard as they do, because it's very, very important and health can't be taken for granted.
आपकी ऐसी कोई कहानियाँ हैं with anybody that you work with or with healthcare professionals or anything that you would want to highlight that talk about why it's really important to give credit where it's due, especially in your industry? आई थिंक आपकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब आपको रियलिटी चेक मिलता है. सो कोविड फॉर ईच एंड एवरीबडी वॉज एक्चुअली अ रियलिटी चेक. सो एज फार एज हेल्थ केयर इज कंसर्न, आप कहीं ना कहीं सेटल्ड फील नहीं करते हो जब आपको लगता है कि देर इज समथिंग दैट यू कैन डू. बट डिस्पैच वॉज अ वेरी बिग चैलेंज दोज डेज, एंड उस चैलेंज को फाइट करके हम कंफर्टेबल भी फील नहीं करते थे कि अब कैसे है कि मेडिसिन को पहुंचाया जाए. बट लॉकडाउन वॉज अ कमर्शियली ठीक है, बहुत लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें उनके लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन बहुत अच्छा प्रूव हुआ है. और उस टाइम पे हमने ये चीज़ हमें देखने को मिली कि हम जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं, कोविड को सब लोगों ने मिल के फाइट किया. और वो भी एक रियलिटी चेक था कि ठीक है, फील्ड में सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट जहाँ पे हमें एक कॉमन चैलेंज को फेस करना है वहाँ पे सब एक भी हो जाते हैं. तो ये भी एक रियलिटी चेक था जो पॉजिटिव साइड था. बट yes, this is what we faced, and this is what our experience has been. Is this a general experience that you had, or is this something that you had necessarily at Ernst Pharmacia, और या Ernst के वहाँ आपके कोई ऐसे कोई जानकार थे जिनकी बात आप शायद शेयर करना चाहें या जिनकी कहानी आप शेयर करना चाहें? Anything you would want to tell us about? Yes, with the time, मैं इसी जो मैंने अभी बात बताई, मैं उसी के एक्सटेंशन में एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, वर्ल्ड क्या है कि विद टाइम हमें लग रहा था कि सब चीज़ें बहुत कमर्शियल हो रही हैं, लेकिन जब 2020, 21, 22 में ज़रूरत पड़ी तो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मैं सिर्फ फार्मा कंपनीज़ की नहीं, मैं डॉक्टर्स की सबकी बात कर रहा हूँ, तो जो उनकी डेडिकेशन थी और स्टोरीज़ अगर मैं शेयर करूँगा तो वो एंडलेस हैं. आई थिंक किसी एक जन की स्टोरी शेयर करना थोड़ा सा अनफेयर होगा. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पास एंड नंबर ऑफ स्टोरीज़ हैं कि सब लोगों ने अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के लोगों को केटर किया है. वो सेल्फलेसनेस जो दिखी है, उसके लिए कोई भी एक नाम लेना, ये सिर्फ मैं अपनी फार्मा कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए. हमने जो भी चीज़ करी, मैं अगर बोलूँ कि ये हम ही थे, नहीं, ऐसा नहीं था. सारी फार्मा कंपनीज, सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो थे, वो दे वर ऑलवेज ऑन देयर टोज, लाइक मतलब, एंड दे वर रनिंग टू सर्व पीपल. सो येस, दिस कोविड गेव अस बिग पॉजिटिविटी, और आई थिंक इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. और लेकिन हमें ऐसे मोटिवेशनल सब्जेक्ट्स दोबारा नहीं चाहिए हैं कोविड जैसे, बट स्टिल I think it has been a learning experience for all. I wouldn't say in a good way, but of course we learn from what our past teaches us, Yes. what history teaches us, Correct. and it also gives us lessons for the future. जी. तो आगे की अगर बात करें, फ्यूचर की बात करें, yes, ये दौर कभी वापस ना आए, बट अगर आए तो आपको लगता है हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे? Absolutely yes. कोई भी चीज़ जब पहली बार आती है तो हम हमेशा लेस प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया ने वैक्सीन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले जिस पेस पे तैयार की है विद लोगों ने, बट आई थिंक हमारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट या एक अपील ज़रूर करना चाहता हूँ. दे नीड टू लर्न टू ट्रस्ट देयर ओन कंट्री. हमें ये लगता है कि अगर कोई चीज़ बाहर की है तो वो ज़्यादा रिलायबल है. ऐसा नहीं है. आप हेल्थ केयर में ऐसा नहीं बोल सकते हैं. अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या फार्मा कंपनीज़ की बात करें, इन्वेंशन में, डेवलपमेंट में इंडिया बहुत आगे है. कुछ रॉ मटेरियल्स या APIs ऐसे ज़रूर हैं जिनमें हमारी डिपेंडेबिलिटी बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा है, बट उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ ऑफ़र करी हैं, और पॉसिबली उसमें भी हम सक्सेस अचीव करेंगे और इम्प्रूवाइज करेंगे in coming time. I think that is where the challenge is now. As far as finished formulation is concerned, India is the biggest producer of medicines, one of the biggest countries जो सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बाहर की कंट्रीज़ को भी केटर कर सकता है. तो इसके अंदर हम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं. सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अपग्रेड कर दी गई हैं. तो
हम बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, और कोविड में लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तब भी उन्होंने बहुत छोटे स्पैन के अंदर वैक्सीन को डेवलप किया और हेल्थ केयर को केटर किया है। तो जाहिर सी बात है, अब जब आगे कोई ऐसा चैलेंज आएगा तो हम मच बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड है। अर्न्स्ट फार्मेसिया की बात करें तो आप अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं अपने आप को, अपने कंपनी को, अपने साथ के कॉलीग्स को? अगर मैं कहूँ कि 5 साल बाद आपको लगता है कि हम इस शिखर पे पहुँच जाएंगे, तो क्या शिखर होगा? हर एक बिजनेस की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम टाइम के साथ बढ़ें, हमारी फिगर्स बढ़ें और सेल्स बढ़ें। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में ऐसा बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बट अगेन आई विल करेक्ट माई सेल्फ कि रियलिटी की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन दैट हम अपनी फिगर्स के अंदर अगले 10 सालों के अंदर एक ज़ीरो तो और जोड़ ही लेंगे, और हो सकता है वो अगले 5 सालों में हो जाए। और मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहेंगे, फिगर्स बढ़ती रहेंगी, सेल्स बढ़ती रहेंगी, हमारी कवरेज बढ़ती रहेगी। तो यस, बिजनेस विल ऑल्सो ग्रो, सो विल वी। And good luck to you for that. It has Thank you. been a pleasure speaking with you. Thank you so much for sharing your story, the story of Ernst Pharmacia, with us here today. It's clear that your commitment to quality, to technology, to innovation, to timely service, to changing with the times, as important as it is, going to make that difference in healthcare. And for our viewers, if you'd like to learn more, you can visit Ernst Pharmacia's official website or download their mobile app. The app gives you access to product catalogs, new launches, visuals, and even exclusive promotions, all at your fingertips. This has been Health Horizons. I'm Poonam Burde, and I hope you enjoyed today's conversation. Until next time, stay healthy, stay curious, and keep exploring the future of healthcare.